A very good morning, everyone. I hope you all are doing well. Children, in EVS chapter 4, Home Sweet Home is going to be finished. And we had already done its question answers. Yes, today I'll just read the chapter. Okay, I'll explain you the exercise of this chapter. Then I'll give you some work related to this video. Okay, so let's start. Home Sweet Home. Do you know why do we need a house? We need a house to protect ourselves from heat of the sun, strong wind, rain, wild animals, cold and thieves. Types of houses. People live in different types of houses which are made up of materials easily available in that area. Kacha house. A kacha house is built up of mud and straw and is found in most of our villages. These days, people also use cement and bricks to make stronger houses in villages. Pakka house. A house which is made up of bricks, cement and iron is called a pakka house. Most towns have pakka houses. Big cities also have double-storied or multi-storied houses. We have already read about different types of kacha and pakka houses in previous classes. Clean house. Apart from being strong, a house should also be clean. It is very important for our health that we keep our houses neat and clean. To keep the house clean, we should sweep and dust our house daily, keep things in their proper places, throw all the garbage outside the house into the covered dustbins. Not spill food or water on the floor. If it happens by accident, clean it immediately. Make sure that our kitchen and bathroom floors always slope towards the drain. This will allow the water to flow away easily and keep the floor dry. We must have sufficient doors and windows to let in fresh air and sunlight. Sunlight kills many harmful germs. Not let any garbage or water collect outside the house, as this attracts germs and mosquitoes that cause diseases. Not let any drain get blocked, as mosquitoes breed in still water. Do you know what else can make our houses dirty? Pests. We share our homes with some unwanted visitors. These animals are not our pets. They are called pests. Pests are those insects or small animals that are harmful. Cockroaches, lizards, mosquitoes, and rats are some common house pests. They hide themselves during the day. We see them mostly at night. They come out of their hiding places in search of food. They carry germs of many diseases as they hide in dirty places. We should keep our houses clean to avoid pests. We must also spray pesticides from time to time to kill these pests. Always keep in mind that pesticides are harmful chemicals and should be kept away from children. Garbage disposal. Improper disposal of garbage is a major problem. Keeping the surroundings clean and disease free is everyone's responsibility. Some people litter the streets and roads and do not throw garbage in a dustbin. This causes land pollution and spread of infections. If we throw garbage in a dustbin, the sweepers collect it from our homes and dump it in the closed garbage bins. The municipality trucks carry this garbage away from the city for disposal. Also, we should find ways of generating less garbage. Children, now the chapter is finished and here are some exercise work given on this page. Okay,
और जिससे रिलेटेड हम थोड़ा सा वर्क नोटबुक में कर चुके हैं। लाइक ये 3 कंटेनर्स मैं आपको दे चुकी हूँ ड्रॉ करने के लिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड हैज़र्डस वेस्ट। आप इनके बारे में लिख चुके हैं कि किस कंटेनर में कौन सा वेस्ट हमें डालना चाहिए। ओके, हेयर आर सम थिंग्स ऑल्सो गिवन टू रिमेंबर रिलेटेड टू द चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं जो हमें याद रखने हैं। सो लेट्स रीड दीज थिंग्स। 1. A house protects us from the sun, wind, rain, wild animals, cold, and thieves. 2. Most houses in the villages are made up of mud and straw and are called kacha houses. 3. Houses in towns are made of bricks, cement, and iron and are called pakka houses. 4. Big cities have double-storied or multi-storied houses. 5. We must keep our house neat and clean to stay healthy. 6. A clean house should have windows to let in sunshine and fresh air. 7. Pests are harmful animals living in our homes. 8. We should throw garbage in a dustbin. Now let's discuss the exercise work which you have to do in your book. Okay, exercise 1. Tick the correct option. यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन के, और आपको करेक्ट जो आंसर है उस पर टिक करना है। A. People in villages live in. विलेज के जो पीपल हैं वो रहते हैं 1. बंगलोज, 2. केव्स, 3. फॉरेस्ट्स, 4. कच्चा हाउसेस। कहाँ पर रहते हैं आपको वो टिक करना है। करेक्ट आंसर B. अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ डैश, ग्रास, ब्रिक्स, सीमेंट, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। आपको टिक करना है पक्का हाउस किससे बना होता है, ग्रास से, ब्रिक्स से, सीमेंट से, या सेकंड और थर्ड दोनों चीज़ों से। ठीक है। सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्ट। इनमें से कौन सा पेस्ट नहीं है। लिजर्ड, कॉकरोच, लेडी बर्ड, मॉस्किटो। डी. वी शुड हैव डोर्स एंड विंडोज इन अवर हाउसेज टू लेट इन। हमारे घरों में जो विंडोज़ और डोर्स होते हैं वो घर में किस चीज़ को आने देने के लिए होते हैं। सनशाइन, डस्ट, फ्रेश एयर, बोथ 1 and 3। आपको करेक्ट पे टिक करना है। फर्स्ट आपको दिया है सनशाइन, सेकंड दिया है डस्ट, थर्ड दिया है फ्रेश एयर, और फोर्थ में आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। ई. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। घर जो है वो हमें किस चीज़ से, किन चीज़ों से बचाता है। सन, विंड, रेन, ऑल ऑफ दीज। सन से, विंड से, रेन से, या ऑल ऑफ दीज, इन सभी से। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2. स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। A. We need not wipe spilled water from the floor as it dries itself. अगर फ्लोर पे पानी गिर जाए तो हमें उसे साफ नहीं करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है उसे साफ करने की, क्योंकि वो खुद साफ हो जाता है, सूख जाता है। नहीं है हमें नीड। ट्रू और फॉल्स। B. We should keep our house and neighborhood clean. हमें अपना नेबरहुड और अपना घर साफ रखना चाहिए। ट्रू और फॉल्स। C. We should find ways to generate more garbage. हमें ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज बढ़ाने के, जनरेट करने के तरीके ढूंढने चाहिए। ट्रू और फॉल्स, ऐसा है। D. Blocked drains help mosquitoes to breed. जो ब्लॉक्ड ड्रेन्स होती हैं, रुकी हुई जो नालियाँ होती हैं,
उनसे क्या होता है? मॉस्किटोज टू ब्रीड, मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ई, पेस्ट्स आर अनवांटेड विजिटर्स इन अवर होम्स। पेस्ट्स जो होते हैं वो अनवांटेड विजिटर्स होते हैं हमारे घर में, जिन्हें हम नहीं चाहते। इज इट ट्रू और फॉल्स? आपको सिर्फ टी और एफ लिखना है। जो ट्रू है उसके लिए टी, जो फॉल्स है उसके लिए एफ। ओके, इन सभी सेंटेंसेस को आप दोबारा से रीड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, नेम एनी 4 थिंग्स दैट आर यूज्ड टू। वो 4 चीज़ें लिखनी हैं जो कि यूज़ होती हैं। बिल्ड अ पक्का हाउस, पक्का हाउस बनाने के लिए। कीप अवर हाउस इज क्लीन। 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो इन पक्का हाउस बनाने में यूज़ होता है और जो घर को साफ रखने में। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, गिव 1 वर्ड आंसर्स। आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर्स देने हैं इन सेंटेंसेस के। 1 सेंटेंस 1 वर्ड का आंसर लिखना है आपको। ओके। ए, इट इज स्प्रे टू किल पेस्ट्स इन द हाउस। स्प्रे किया जाता है इसको किस लिए? घर में जो पेस्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए। उसका नाम लिखना है आपको। बी, डबल स्टोरीड और मल्टी स्टोरीड हाउसेज आर फाउंड हियर। कहाँ पर मिलते हैं डबल स्टोरीड एंड मल्टी स्टोरीड हाउसेज? सी, germs are attracted if this is collected at a place. जर्म्स आते हैं वहां पर जहाँ पे ये चीज इकट्ठी हुई होती है। डी, किचन एंड बाथरूम फ्लोर्स स्लोप टुवर्ड्स दिस। किचन का और बाथरूम का जो फ्लोर है उसका जो ढलान होना चाहिए वो इसकी तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ? उसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ई, कॉकरोचेज, लिजर्ड्स, मॉस्किटोज एंड रैट्स। इन सबको अगर हम 1 वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है। और जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं नोटबुक में। तो आज आपको बुक में ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क एंड योर होमवर्क इज रीड द चैप्टर लाउडली 3 टाइम्स। आपको 3 टाइम्स लाउडली रीड करना है चैप्टर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। ओके। सेकेंड, डू पेज नंबर 34 एंड 35 इन बुक। गुड हैंड राइटिंग में करना है 34, 35 पेज नंबर बुक में। ठीक है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नंबर 3 इज योर एक्टिविटी वर्क। मेक अ मॉडल ऑफ कच्चा और पक्का हाउस बाय यूजिंग मटेरियल अवेलेबल इन योर होम्स। आपको ये एक्टिविटी वर्क करना है, एक मॉडल बनाना है कच्चा हाउस या पक्का हाउस, जो भी आपको इजी लगे या फिर जो जिस चीज़ का मटेरियल आपके घर में अवेलेबल हो। कार्डबोर्ड वगैरह चाहिए, ग्लू चाहिए इसके लिए। ठीक है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं घर में उनसे आपको एक कच्चा हाउस या फिर पक्का हाउस कोई एक मॉडल आप रेडी कर सकते हैं। और मैं आपका ये मॉडल लाइव सेशन में देखूंगी। जब हम मॉर्निंग में अटेंडेंस क्लास लाइव लेंगे तब मैं आपका ये मॉडल ज़रूर देखूंगी। ठीक है, आप सभी को एक मॉडल रेडी करना है कच्चा हाउस या पक्का हाउस का। आप गूगल करके पिक्चर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रही हूँ रिलेटेड टू कच्चा और पक्का हाउस मॉडल। ओके, जो मटेरियल घर में अवेलेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मज़ा आएगा आप सभी को करने में। हेल्प ले सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है, मम्मा पापा से। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज ऑफ पक्का हाउस। दिस पिक्चर इज ऑफ पक्का हाउस। दिस इज कच्चा हाउस। कच्चा हाउस, पक्का हाउस। ज़रूरी नहीं है आपको एज इट इज़ बनाना है, ऐसा नहीं है। आपको इनसे एक आइडिया लेना है सिर्फ कि आपको ऐसे बनाना है। ये सिर्फ स्ट्रॉज से, बैम्बू से और कार्डबोर्ड से, इन चीज़ों से बना हुआ है कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।